Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. In last class, we have discussed about unit and various system of units. So when we represent any physical quantity in different system of unit, the amount of quantity should remain constant, but the numeric value and the units used in different system are different. ये हुआ था लास्ट क्लास में, है ना? क्योंकि हम बताए थे देयर आर मेनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट. सबसे पहले क्या हुआ था? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, where C stand for centimeter, G stand for gram, and A stands for second. Then in British, FPS unit was used, where F stand for foot, P stand for pound, and A stand for second. And then in Paris, another system of unit was developed, that is known as MK system of unit, which is known as meter, kilogram, and second. Okay? And after that, the another updated form of MK system of unit is SI system of unit. That means system SI system of units. And SI system का नाम हम लोग क्या दिए थे? This is the international system of unit. The full form is system international unit. Okay, system international unit. So in this SI system, it is known as standard unit, and where m is termed as, that is mass is termed as kg, length is in meter, and t in second. Okay, and the rest 4 physical quantities, which are ampere, temperature, electricity, temperature, amount of substance, okay, and luminous intensity, and those units are ampere, Kelvin, mole, and candela. ओके, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, और हम बताए थे क्या इन नेक्स्ट क्लास, म्यूट करो सहदेव, म्यूट करो. एंड हम बताए थे क्या इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सो डायमेंशन क्यों जरूरत पड़ेगा? ठीक है, आज यही टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे. दिखाई दे रहा है बोर्ड? एक मिनट, जो आया पहले हम ऐड कर लेते हैं सबको. एडमिट, ठीक है. Today's topic is dimension.
Today's topic is dimension. Okay, so dimension किसका है? Dimension है तुम्हारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का है. इसके बाद और कोई आएगा तो मैं ऐड नहीं करेंगे. ओके, तो डायमेंशन किसका है? डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं क्या फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से होता है. एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड दूसरा क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग नाम दिए थे. देयर आर मेनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था. मतलब those physical quantity are independent. That means they cannot be expressed in terms of other physical quantity. Okay, like length L. ठीक है, इसका डायमेंशन हम लोग क्या बोलेंगे? चलो, L को रिप्रेजेंट करने के लिए और कोई पैरामीटर का जरूरत नहीं पड़ रहा है, कोई फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ रहा है. सो लेंथ, इसका नोटेशन क्या है? इसका सिंबल क्या है? कैपिटल L. बट जब हम लिखेंगे ओनली कैपिटल L, देन इट रिप्रेजेंट ओनली लेंथ. बट अगर कैपिटल L को विथिन स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे, विथिन स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे, देन इट रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ लेंथ. इट रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ लेंथ. ओके, कैपिटल M, इसको हम विथिन स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हैं, so that represent the dimension of mass. कैपिटल T विथिन स्क्वायर ब्रैकेट जब लिखोगे, it represent the dimension of time. Okay, so how can we represent any physical quantity with its dimension? So when we write the symbol of that particular physical quantity within the square bracket, then it indicates that it is the dimension of that particular physical quantity. ठीक है, so देखो यहाँ पे L, M and T हम जो लिखे हैं, these physical quantities are not depend upon other quantities. इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो इसको एक्सप्रेस करने के लिए और कोई फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प हमको नहीं लेना पड़ रहा है. बट जब हम लोग कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, उसका डायमेंशन कैलकुलेट करने जाएंगे, देन देखेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीपल नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अराइज होता है एंड विद देयर सर्टेन पावर में अराइज होता है, सर्टेन ऑर्डर में अराइज होता है. ठीक है, that order, that power is known as dimension of that particular physical quantity in that particular fundamental physical quantity in that derived quantity. Okay, Somnath Mahato. So as an example, चलो आज डायमेंशन पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके, वेलोसिटी सबसे इजीएस्ट वेलोसिटी, इसका नोटेशन क्या है? v. तो v सर, हाँ सर डेफिनेशन नहीं बताएंगे सर? ड्राइवर को बोले वो वाला बताइए, हम आ रहा जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, उसको बता रहा. ठीक है, तो वेलोसिटी v, सो v इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या? L/t. ठीक है, L/t, where L is the distance and t is the time. Basically velocity equal to displacement by time, not distance. So उसका जो डिफरेंस है हम लोग मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम इन जनरल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, सो वेलोसिटी इक्वल टू L/t. सो वेलोसिटी का जब डायमेंशन हम कैलकुलेट करने जाएंगे, देन L का डायमेंशन लिखना है एंड t का डायमेंशन लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? विथिन स्क्वायर ब्रैकेट Lt - 1 विथिन स्क्वायर ब्रैकेट Lt
-1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखो जब वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करने गए देन a यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, t क्या है, t भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी f q लिखा। सो देखो a कितना ऑर्डर पे अरेस्ट हुआ, उसका 1 ऑर्डर पे अरेस्ट हुआ, t कितना ऑर्डर पे अरेस्ट हुआ, -1 ऑर्डर पे अरेस्ट हुआ। So when we represent or when we write the dimension of any derived physical quantity, so this is derived quantity dq and these are fundamental quantity. So derived quantity का dimension represent करने के लिए fundamental quantity उसका कुछ certain order पे certain power पे arise होता है and that particular order is known as dimension of that particular physical quantity, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे एक्सेलरेशन। चलो रिपीट कर दीजिए सर। हाँ बोलो सर एक बार ये रिपीट कर दीजिएगा सर, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया था सर। कौन सा रिपीट करेंगे बोलो। सर ये मतलब शुरू से सर, क्योंकि मेरा नेटवर्क पूरा कट गया था सर, बस शो कर रहा था, बस इतना जितना भी आप मिटाए ना सर यही शो कर रहा था। अच्छा अच्छा, सो v इक्वल टू l t माइनस 1, ओके। सो देखो यहाँ पे a t क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो तुम लोग जानते हो जो बेसिक प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है, m l t, m l t। अगर क्वेश्चन आएगा कि राइट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ m l t, ठीक है। देखो यहाँ पे l एंड t है बट m नहीं है, बट तुम लोग जानते हैं क्या, x टू द पावर 0 इक्वल टू कितना 1, ठीक है। सो m टू द पावर 0 इक्वल टू लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सो l t टू द पावर -1 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे देन l t -1 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ऐसे जरूरत नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि राइट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ m l t, देन तुमको लिखना है यहाँ पे m टू द पावर 0, अदरवाइज m टू द पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, देन ओनली लिखोगे l t -1 जो है। सर इसमें एल का पावर भी 0 कर सकते हैं ना? l का पावर 0 क्यों है, l का पावर कितना है 1। जैसे x ax हम लोग लिखते हैं ना कोई इक्वेशन ax + bx² + c, तो यहाँ पे x एक का ऑर्डर कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना पावर है 1, यहाँ पे 2, ठीक है। सो ऑब्वियसली l का पावर यहाँ पे 0 नहीं है, 1 होगा, ठीक है, एंड t का पावर -1 है। सिमिलरली जब तुम एक्सीलरेशन का डायमेंशन मेंशन करने जाओगे, देन एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, वेलोसिटी बाय टाइम। सो वेलोसिटी का डायमेंशन पहले लिखना है एंड उसके नीचे क्या लिखना है, टाइम का डायमेंशन लिखना है। सो v का डायमेंशन हम लोग जानते हैं कि l t -1 एंड टाइम का डायमेंशन क्या है t। सो t अगर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो एक्सीलरेशन का डायमेंशन हम लोग विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट l t -2 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फोर्स का डायमेंशन, देखो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, दिस ऑल आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो जब हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का डायमेंशन लिखने जाएंगे, फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक फार्मूला तुम लोग जानते हैं F इक्वल टू m इनटू a। चलो फोर्स का डायमेंशन हम लिखेंगे, चलो m को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, m का डायमेंशन चलो m को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखा,
एंड ए का डायमेंशन अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ए का डायमेंशन क्या है LT माइनस, सो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया MLT माइनस। सो जब फोर्स का डायमेंशन हम लोग एनालिसिस किया वहां पे देखे हैं मास कितना ऑर्डर पे अरेस्ट हुआ 1 ऑर्डर पे, एयर कितना ऑर्डर पे अरेस्ट हुआ 1 ऑर्डर पे, एंड T माइनस 2 ऑर्डर पे अरेस्ट हुआ। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, तब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का तुम लोग डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू नो द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन। सपोज वॉक डन, चलो वॉक डन, वॉक डन क्या होगा, वॉक डन हम लोग वॉक डन इक्वल टू जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, that means W equal to F into S। so वर्क डन का डायमेंशन W, F का डायमेंशन हम लोग क्या कैलकुलेट किए MLT minus 2 and S means distance, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है L। so इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा M L square T minus 2, M L square T minus 2। तो फोर्स इनटू क्या लिखे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट DISPLA CEMENT, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन W इक्वल टू ML स्क्वायर T माइनस 2। सो इस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। पावर, पावर इक्वल टू तुम लोग जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। So P equal to W by T। So W का डायमेंशन कैलकुलेट किए हैं, उसको T का डायमेंशन से डिवाइड करो, so ML square T minus 2 by T, क्योंकि टाइम का डायमेंशन क्या होगा कैपिटल T। so इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ML square T minus 3। so this is the dimension of power, this is the dimension of power। then easily तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, then कोई भी फिजिकल क्वांटिटी either it will be derived, either it will be फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको डिराइव करने के लिए दैट क्वांटिटी को हम लोग इसके अंदर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग MLT से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलो इसके बाद हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। तुम लोग भी लिखो कॉपी में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन किसको लिखेंगे, डायमेंशन किसका, एनी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, the dimension of any physical quantity, any physical quantity is the order, और क्या है पावर, is the order to which fundamental physical quantity are to be raised, RAISD, to represent that physical quantity, to represent that physical quantity। ओके, कॉपी में लिख लो,
अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा तो रिपीट कर रहे हैं। The dimension of any physical quantity is the order or power to which the fundamental physical quantities are to be raised to represent किसको? देखो यहाँ पे जो physical quantity हम लोग लिखे हैं of any physical quantity, तो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का ऑर्डर क्या है वो ये हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अभी भी क्लास ज्वाइन करने आया है ऐसा स्टूडेंट है। ओके सर बताओ। सर 2p के बाद क्या है? हम रिपीट कर रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द ऑर्डर टू व्हिच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर टू बी रेज्ड, RAISCD to represent that physical quantity, to represent that physical quantity. Okay, just a minute. समझ में आया? चलो, सो तुम लोग जान के रखो कि as there are mainly three fundamental physical quantity है, that are M, L, T with the primary physical quantity. So कोई भी derived quantity को represent करने के लिए हम लोग A in terms of M, L, T उसको represent करें। then बोलोगे सर बाकी जो physical quantity है then उसको क्यों नहीं इसमें represent हम लोग कर पा रहा है? So that is called the drawbacks of dimensional analysis. ठीक है, क्यों हम लोग नहीं कर पा रहे? That is a disadvantage of dimensional analysis. Okay, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो है उसका डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो एक एक टॉपिक करके हम लोग आगे जाएंगे और डिस्कस करेंगे क्या डायमेंशन एनालिसिस करके हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट और नॉट, दैट इज द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं उसमें क्या हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन एनी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन में कितना फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो हम लोग बाय डायमेंशनल एनालिसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू रिप्रेजेंट द एनी रिलेशन, ठीक है, एनी रिलेशन हम लोग उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको डिडक्ट कर सकते हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस। लाइक तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं, चलो A इक्वल टू M इनटू A, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला, A इक्वल टू M इनटू A। तो तुमको पूछा गया क्या ईच दिस इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 मुझे देते हैं। ठीक है, तुमको पूछा जाएगा कि ईच दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तुम कैसे इसको चेक करोगे? देन उसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर है, वो प्रोसीड्यूर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
एक मिनट, जस्ट क्या क्या है सिलेबस में थोड़ा देख रहे हैं। सो डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे? ओके, डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे? सपोज कोई भी इक्वेशन में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, एंड इफ वी कैन रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, then this equation is dimensional equation. Like एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं जो लोग जानते हैं कि v equal to u plus a, ठीक है, v equal to u plus a. So इस इक्वेशन में देखो कितना फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, v इन्वॉल्व है, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड में LHS में क्या क्या इन्वॉल्व है, v, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। राइट हैंड साइड में भी देखो u इन्वॉल्व है, इसको बोलेंगे a भी वेलोसिटी। एंड सो दोनों एक वेलोसिटी है, सो u एंड v से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन इज इनिशियल वेलोसिटी एंड अनदर इज फाइनल वेलोसिटी। सो both the terms u and v represent velocity. So one important physical quantity is क्या है, velocity. another क्या है, a for तुम लोग जानते हो acceleration, a equal to क्या है, acceleration, and t stands for second. Okay, so यहाँ पे कितना फिजिकल क्वांटिटी है इस इक्वेशन में, v equal to u plus at। इस इक्वेशन में देखो velocity one quantity, acceleration another physical quantity, and time, and क्या है second, किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। so time भी also physical quantity। so हम लोगों को velocity का भी डायमेंशन लिखे थे lt-1, acceleration का भी डायमेंशन लिखे थे lt-2, एंड टाइम का भी डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं दैट इज t। तो यहाँ पे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है सबका डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली एज दिस इक्वेशन इज इन्वॉल्व these physical quantities and all physical quantities can be represented by dimensional analysis, so this equation is known as dimensional equation. This equation is known as dimensional equation. so question आ सकता है कि define dimensional equation, then तुम लोग क्या बोलोगे, if all the physical quantities involved in any equation have dimension, then this equation is known as dimensional equation. This equation are known as dimensional equation. Okay, सर इसको लिखा दीजिए। उतना डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, हम जो नोट्स देंगे नोट्स में लिखा रहेगा, अभी जस्ट हम लोग जान के रहो। ओके, हम जो इम्पोर्टेंट एकदम टर्म्स है उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं बोर्ड में, अदरवाइज मेरा नोट्स जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें सारा कुछ मेंशन है। ओके, तो उतना अगर लिखेंगे तो सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा। सो डायमेंशनल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितना, मतलब इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन कितना कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। एज we are discussing about dimension of any physical quantity, so physical quantity को in terms of dimension, ठीक है, कितना कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। so mainly ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है एंड जिसका वैल्यू क्या है, वेरिएबल वैल्यू है, चलो उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल वैल्यू, ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल। एंड ऐसा भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है बट वेरिएबल है, उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है। ऐसा कुछ फिजिकल, हाँ बोलो सर। विष्णु महतो को सर विष्णु महतो को कट हो गया, उसको ऐड कर लीजिए। देखो ऐसे बार बार काट होते जाएगा और हम बार बार ऐड करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। कोई एक अटेंडेंस ले लो। सो क्या क्या है,
किसी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है एज वेल एज वेरिएबल वैल्यू है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है बट वेरिएबल वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, फिर कुछ क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है बट वेरिएबल वैल्यू है, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है एंड जो क्वांटिटी का है कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल, चलो वेरिएबल पहले लिखते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, सेकंड क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तीसरा क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। म्यूट करो कोई, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट करो, डायमेंशनल कांस्टेंट। एंड फोर्थ क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। समझ में आया? देखो पहला दो हम क्या लिखे हैं, वेरिएबल, एंड लास्ट दो क्या लिखे हैं, कांस्टेंट। एंड जो दो वेरिएबल हम लिखे हैं, एक क्या है डायमेंशनल वेरिएबल एंड दूसरा क्या है डायमेंशनलेस वेरिएबल। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में जो लिखे हैं डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आएगा क्या, डिफाइन डायमेंशनल कांस्टेंट। तुमको क्या लिखना है, दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशन बट they have not variable values, they are constant. ठीक है, their values is constant, so that physical quantities are known as dimensional constant quantity. ठीक है, dimensionless मतलब इसका डायमेंशन नहीं है बट फिर भी कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू नहीं। ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन भी है और इसका वैल्यू चेंज भी होते जाएगा। चलो डायमेंशनल वेरिएबल तुम लोग सब कोई जानते हो, फोर्स, कभी फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन, कभी फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन, कभी फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन। बट फोर्स का डायमेंशन भी है बट इसका वैल्यू फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, चेंज होते जाएगा। हम जितना बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे फोर्स का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, हम जितना मास को स्प्रिंग में मास जितना ज्यादा लगाएंगे फोर्स उतना बेटर होगा। ठीक है, सो उसको बोलेंगे डायमेंशनल वैल्यू। सो एग्जांपल, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वर्क डन, ये सब क्या है, सबका डायमेंशन है बट कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सो वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, सो डायमेंशनल वेरिएबल, फोर्स, एक्सीलरेशन, बहुत कुछ है। ठीक है, वर्क डन, पावर, एटसेट्रा। नेक्स्ट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, वो भी वेरिएबल वैल्यू है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है बट डायमेंशन उसका नहीं है, डायमेंशनलेस। ठीक है, एज एन एग्जांपल हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, एंगल हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। दोनों क्या है, लेंथ, तो दोनों लेंथ का रेशियो अगर रहेगा तो उसका डायमेंशन नहीं रहेगा, लेंथ कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, बट एंगल का वैल्यू कभी हम लोग जानते हैं 30 डिग्री, कभी जानते हैं 40 डिग्री, कभी 80 डिग्री, कभी 180 डिग्री, कभी 360 डिग्री। वेरिएबल है बट इसका डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसलिए डायमेंशनलेस वेरिएबल। नेक्स्ट क्या है, और अनदर एग्जांपल, सपोज स्ट्रेन तुम लोग नहीं सुने हैं, एक्चुअली स्ट्रेन क्या है, कोई भी इलास्टिक स्प्रिंग है जिसको हम एक रिजिड सपोर्ट से हैंगिंग किए हैं। चलो और भी थोड़ा लेंथ को इंक्रीज करके लिखते हैं, कितना लेंथ है। ठीक है,
जिसका वैल्यू क्या है कैपिटल एल, कैपिटल एल। इसके नीचे अगर 5 kg मास हम लगा देंगे, 5 kg मास, तो उसके लिए क्या होगा, स्प्रिंग का लेंथ एक्सटेंडेड होगा। कितना एक्सटेंडेड होगा, चलो सपोज इतना अमाउंट ऑफ लेंथ इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो जो एक्सटेंडेड लेंथ कितना है, स्मॉल एल, एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना था, कैपिटल एल, ठीक है। ये जो स्मॉल एल एंड कैपिटल एल का रेशियो है, दैट इज स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, इसका नाम क्या है, ट्रेन। इसका नाम क्या है, ट्रेन। तो इलास्टिसिटी जब तक तुम पढ़ोगे, इलास्टिसिटी चैप्टर में ये डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे, बट स्ट्रेन इक्वल टू भी जान के रखो, इट इज द चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। म्यूट करो, अनम्यूट। विष्णु तुमको ऐड किया हम अनम्यूट करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रेन क्वांटिटी है स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अभी मान लो कैपिटल एल का वैल्यू 100 सेंटीमीटर और स्मॉल एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, देन 10 by 100 मींस 1 by 10, तभी कैपिटल एल का वैल्यू 100, स्मॉल एल का वैल्यू होगा 20 सेंटीमीटर, देन 20 by 100 दैट इज 1 by 5, ठीक है। सो ये वैल्यू अभी फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, तो वैल्यू वेरिएबल है, बट इसका डायमेंशन क्या है, एल का डायमेंशन भी कैपिटल एल और कैपिटल एल का भी डायमेंशन एल ही है, तो बोथ एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इसका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसा कुछ क्वांटिटी है जिसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बट उसका डायमेंशन भी है। एज एन एग्जांपल हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, प्लैंक कांस्टेंट h, ठीक है, दीज आर डायमेंशनल कांस्टेंट। लाइक एग्जांपल देखिए हम दिखाते हैं, चलो देयर इज अ फार्मूला, हम पहला दिन लिखे थे F इक्वल टू Gm1 m2 by r²। दिस फार्मूला इन gravitational force in between two mass of m1 and m2 and m1 and m2 which are separated by some distance r, ठीक है, and if the force of attraction is F, then F is the product of their masses m1 and m2, and F is inversely proportional to the square in between the distance of two masses, ठीक है। That means F is proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to 1 by r²। So दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, F is proportional to m1 m2 by r² लिख सकते हैं, बट प्रोपोर्शनल से कांस्टेंट लाना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। सो F इक्वल टू दैट कांस्टेंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। सो F इक्वल टू कैपिटल G इनटू m1 m2 by r², ठीक है। सो यहाँ पे जो G है, दिस वैल्यू ऑफ G हैज कांस्टेंट वैल्यू। तुम यूनिवर्स में वर्ल्ड में कहां पे भी जाओ G का वैल्यू फिक्स रहेगा, कैपिटल G जो है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बताया गया, मतलब यूनिवर्स में तुम कहां पे भी जाओ इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट तो कांस्टेंट वैल्यू में चेंज अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कुछ वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 वैल्यू है।